دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 17 پیشکش میرے کارواں۔ میں وقفے سے 34 بھی جھانک رہا تھا اور راکیل سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اٹھ کر عورت سو کر اٹھے گی تو اپارٹمنٹ سے باہر ضرور نکلے گی اور میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اسے چھاپنے کی کوشش کروں گا، پھر اس سے ساحل کا پتہ اگلوانا میرے لیے چندہ مشکل نہ ہوتا۔ میں تو 2 گھنٹے پہلے ہی اسے گھیرنے کے موڈ میں تھا، لیکن برنارڈیو کی اچانک انٹری نے ہمارا رخ پھیر دیا تھا۔ 10 بجے رات میری امید پر آئی وہ عورت بیدار ہوئی۔ 10-15 منٹ اس نے فریش اپ ہونے میں لگائے، پھر میری توقع کے عین مطابق وہ تیار ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹس بلڈنگ سے وہ اپنی سر کیڈلک ہی میں برآمد ہوئی تھی۔ اس دوران ہم دونوں بھی گولڈن یونیکارن سے اٹھ کر اپنی شیوی میں بیٹھ چکے تھے۔ سر کیڈی جب اس براڈ وے پر آئی تو ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب چونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے تھی اس لیے میں باطنی آنکھ کا شٹر گرا کر راکیل کے پہلو میں حاضر ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بادستور راکیل کا قبضہ تھا۔ ویسے پچھلے چند گھنٹوں میں نے مین ہیٹن کی اسٹریٹس اور ایونیوز کو جو خاک چھانی تھی، اس کے نتیجے میں مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اکیلے ڈرائیونگ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ مین ہیٹن بہت ہی طریقے سے آباد کیا گیا ہے، ناجائز تجاوزات کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ کیڈی اسٹرائس اسکوائر سے کنال اسٹریٹ پر آئی تو ہم 40-50 گز کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں تھے۔ راکیل نے کہا، کہیں یہ واپس اپنے دفتر تو نہیں جا رہی؟ کیوں؟ اس وقت دفتر جا کر کیا کرے گی؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، کیا وہاں کوئی کچھ بھول آئی ہو؟ سر کیڈی کنال اسٹریٹ کو چھوڑ کر جب بادری اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو اس کا رخ شمال کی سمت ہو گیا تو راکیل نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، یہ دفتر نہیں بلکہ کہیں اور ہی جا رہی ہے۔ ممکن ہے سائناگوگ میں ربی موشی ہیمن کے پاس جا رہی ہو۔ راکیل کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ یہ عین ممکن تھا وہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ پر واقع یہود عبادت میں ربی سے ملنے جا رہی ہو۔ یہ راستہ تو اسی سمت اشارہ کرتا تھا۔ ہم خود بھی برنارڈیو کی بیوی کا تعاقب کرتے ہوئے اسی راستے سے سائناگوگ پہنچے تھے۔ اگر وہ ایشیائی عورت واقعی ربی کے پاس رہی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا وہاں سائناگوگ میں کوئی نہایت ہی خطرناک پلاننگ ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے اسی بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا وہ اس وقت گہری نیند میں ہے۔ مجھے اس کی کیفیت پر شدید حیرت ہوئی۔ آج صبح لگ بھگ 10:30 بجے میں نے اسی بیڈ روم میں محض خواب دیکھا تھا، تو کیا وہ پچھلے 12 گھنٹے سے اسی حالت میں تھی؟ اس ہولناک سوال نے مجھے لرز کر رکھ دیا۔ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے اس دوران میں وہ چند گھنٹوں کے لیے جاگتی ہوئی رہی ہو۔ بہرحال ایسا تھا تو اس کی کنڈیشن اور سچویشن میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ میں آنکھیں کھول کر گاڑی میں حاضر ہو راکیل کو میں نے ساحل کے بارے میں مختصر بتایا تو تھا۔ اس نے کہا، جس دوران میں تم ساحل کے پاس تھے سر کیڈی والی نے موبائل فون پر کسی سے بات کی ہے؟ میں اس وقت کیڈی پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ راکیل کی بات ختم ہوئی تو میں نے دیکھا اس ایشیائی عورت نے ایک مرتبہ پھر موبائل اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ میں جان نہیں سکتا تھا وہ موبائل پر کس سے بات کیا کر رہی تھی، اور یہ نہ جاننا مجھے ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لٹل اٹلی اور باوری کے اندر سے گزری، پھر بادری اسٹریٹ پر ہی رہتے ہوئے اس نے ایسٹ ولیج پر عبور کیا اور یونین اسکوائر سے وہ ایسٹ 14 اسٹریٹ پر مڑ گئی تو میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ اب اگر وہ آگے جا کر 5th ایونیو پکڑ لیتی تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ وہ سائناگوگ ہی جا رہی تھی، مگر اس نے میری توقع کے بالعکس عمل کیا۔ سر کیڈی 5th ایونیو کا کراس کر کے اسٹریٹ 14 پر آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ مجبوراً ہمیں بھی تعاقب میں اس کے پیچھے ہی آنا پڑا۔ ایسٹ 14 اسٹریٹ 5th ایونیو کے بعد ویسٹ 14 اسٹریٹ میں بدل گئی تھی۔ کیڈی نے 5th کے بعد 6th، 7th، 8th اور 9th ایونیو بھی کراس کیا اور 420 ویسٹ 14 اسٹریٹ پر جا کر رک گئی۔ ہم نے اسی اسٹریٹ پر تھوڑا آگے جا کر 10th ایونیو کے آغاز پر اپنی گاڑی سڑک کے کنارے پر لگا دی۔ وہ ایشیائی عورت اپنی گاڑی سے نکلی اور ایک عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہاں یہ کس سے ملنے آئی ہے؟ میں نے راکیل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، یہ پوچھو وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟ مطلب؟ راکیل کے انداز نے مجھے الجھا دیا۔ میں کلٹ کلب کی بات کر رہی ہوں۔ راکیل کی نگاہ بے یقینی موجود رہی۔ وہ عورت کلٹ کلب میں داخل ہوئی ہے؟ تو اب میں بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ اس نے افسوسناک انداز میں گردن جھٹکی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم کلٹ کلب کی حقیقت سے بے خبر ہو۔ کیا یہ کوئی گوگو کلب ٹائپ کوئی ہے؟ گوگو؟ وہ استحزازی انداز میں بولی، کلٹ کلب گوگو سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ راکیل کا ڈھکا چھپا انداز میرے لیے الجھن کا باعث تھا۔ اس کو وضاحت کرنا پڑی۔ بیک ویومر میں وہ سر کیڈی کا جائزہ لینے کے بعد بولی،
क्लीट क्लब एक लेस्बियन क्लब है, मिक्स नेशनल लेस्बियन क्लब। ओह, मैं इंगश्त बादंदा रह गया। मिक्स नेशंस लेस्बियन क्लब यानी मुख्तलिफ अक़वाम अखलातन हम सफ़ा की मुज़ाहिरगाह। मैंने अपने कानों की लोगों को तपते हुए महसूस किया। मैंने लेस्बियन औरतों और इनके करतूतों के बारे में सिर्फ सुन ही रखा था और ये सुना हुआ अपने रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आज एक लेस्बियन क्लब को बाहर से देखने का इत्तेफाक हो रहा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने राकेल से इस्तफसार किया, मुझे तो इस इमारत पर किसी क्लब वगैरह का कोई साइन नजर नहीं आया। तुमने किस बिना पर यह दावा किया है कि औरत लेस्बियन क्लब में गई है? ऐसे क्लब से खुल्लम खुल्ला नियॉन साइन अवेजा नहीं किए जाते, राकेल ने बताया, बल्कि जिस इमारत में कोई लेस्बियन या गाय क्लब मौजूद हो वहाँ सनफ की मुनासबत से एक मखसूस निशान बना दिया जाता है। तुम इसे खुफिया पॉलिसी समझ लो, जरूरतमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं इस मखसूस निशान को देखकर ही बात कर रही हूँ। वो एक लम्हे को मुतवक्फ हुई, फिर इजाफा करते हुए बोली, 14 वेस्ट स्ट्रीट की इस क्लब के बारे में मैंने किसी मैगजीन में एक फीचर पढ़ा था। ये क्लब कुछ अरसे पहले ही कायम हुआ है। इसकी रुआ ऑर्गेनाइज जोदो औरतों जिनके नाम जोल्सन टेलर और जोली टुलेंटे है। इस फीचर में ये भी बताया गया था कि इस क्लब में एडर फ्री सेफ सेक्स पर मालूमाती लेक्चर्स भी दिए जाते हैं और पोर्न वीडियोस भी दिखाई जाती हैं। जो जोल्सन टेलर और जोली टुलेंटो मुस्तकबिल करीब में न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के तमाम बड़े और मॉडर्न शहरों में क्लिट क्लब्स की चेन चलाने का इरादा रखती हैं। तुम्हारी मालूमात हैरत अंगेज होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं, मैंने कहा। वो बोली, कोई भी मालूमात ना तो खतरनाक होती है और ना ही महफूज। इसका इस्तेमाल इसकी नौयत का तयन करता है। मैं हर किस्म के मैगजीन का मुतालिया करती हूँ, खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है। राकेल बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। मुझे इसकी बात से 100% इत्तेफाक था। इसके जरिए जो मालूमात मुझ तक पहुंची थी, अगर इसका मनफी इस्तेमाल ना करता तो वो किसी भी पहलू से खतरनाक साबित नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरे ज़हन में पैदा होने वाले सवाल हनूज तनशा था। मैंने एक मरतबा फिर राकेल से इस औरत की यहाँ बरामद के बारे में पूछा तो शौकी से बोली, तुम खुद ही इधर आकर जरा झांक कर देख लो, क्या कह रही हो? मैंने इसे घूरा। इसने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं वजदान, अभी तो वो आई है। इसने आते ही अपने फन का मुजाहरा तो शुरू नहीं कर दिया होगा। तुम एक नजर इधर डालकर वापस आ जाओ, इसका माहौल तुम्हें समझा देगा। वो इस वक्त कहाँ है? राकेल की तजवीज माकूल थी। मैंने आंखें बंद की, मस्कुरा खोबरो एशियाई औरत का तस्वर किया और पलक झपकते कि मैं इसके माहौल में इंटर हो गया। वो इस वक्त टीवी के सामने बैठी थी जहाँ कोई न्यूड फिल्म दिखाई जा रही थी। इसके साथ चंद और औरतें भी थी जिनसे वो हसीनो जमील अमेरिकन ने अपने फन के जोहर दिखाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। राकेल ने शरारत भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ? तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। मैं इसके दावे की तस्दीक कर दी। राकेल ने मुझे बताया कि ऐसे क्लब्स आम नजर से ओझल रखे जाते हैं। क्लब में दाखिल हो तो फ्रंट पर एक बार रूम दिखाई देता है। हादिल मंजिलों को शराब खाना ही दिखाई देता है। कमरे के एक कोने में एक मेज पर मुख्तलिफ कार्ड्स दिखाई देते हैं। आप अपनी जरूरत और ख्वाहिश के मुताबिक इस कार्ड के अंदर अंदराज कर दें, बाकी मामलत बार वाला खुद ही देख लेते हैं। यहाँ आपसे मुराद लेस्बियंस हैं। वो जरा देर को रुकी, फिर सिलसिला इकराम को जारी रखते हुए बोली, बज़ाहिर एक बार नजर आने वाले कमरे की अकब में एक पोशीदा कमरा भी मौजूद होता है जहाँ लेस्बियन औरतें अपने फन और तकनीक का मुजाहरा करती हैं। बाहर में जाएं ये औरतें और इनके फनी मुजाहरे। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो एशियाई औरत क्लिट क्लब से कब बाहर निकलेगी। अपने प्रोग्राम के बारे में तो ठीक तौर पर वही बता सकती है। राकेल ने मेरी बेजारी और झंझलाहट से महफूज होते हुए छेड़ा, अगर तुम कहो तो मैं इससे पूछ कर आ जाती हूँ। फजूल बातें ना करो, मैं बरबराया। वो मानी खिज अंदाज में मुस्कुराकर रह गई। मैं अमेरिका की इस तरक्की और आज़ादी के बारे में सोचने लगा। ये वाक़या तो कुछ अरसा पहले का है, जब ढके छुपे अंदाज में सही न्यूयॉर्क में कई लेस्बियन और गे क्लब्स खुले हुए थे। आजकल तो वहाँ अहम जिनस अफराद की शादी को कानूनी शक्ल दे दी गई है। अगर आप मर्द हैं तो अपने पसंद के मर्द से शादी कर सकते हैं और अगर औरत हो अपनी पसंद की औरत से शादी कर सकती हैं। अमरीकी माहरीन एंड एड्स से बचाव का एक रास्ता भी बताते हैं, लेकिन इस गैर फितरी इखलात के नतीजे में आगे जाकर जो नाकाबिल इलाज और मुहलक बीमारियां सामने आई, इन माहरीन के बाप की तस्वुर नहीं कर सकते। इन खतरनाक और मोजी अमराज के सामने एड्स तो बेचारी जमा जुमा 8 दिन का बेचौर नजर आएगी। अमेरिका की तारीफों के पल बांधने वाले देसी अफराद के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर हर किस्म की बेरावी को आज़ादी का नाम दे दिया जाए और इस आज़ादी को तरक्की का जीना समझ लिया जाए तो फिर ये तरक्की बड़ी ही घटिया तरक्की होगी। फितरत से मुतसादिम होने वाले कई पनप होंगे। जल्द या देर से इसे तबाह होना होता है। खुदा ने औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत को पैदा किया है। इस फितरी असूल को इनकार दर हकीकत खुदा का इनकार है। इसके कानूनी
का पमाल करना कोई माने या ना माने, सुर कैडी वाली एशियाई औरत रात 1 बजे के बाद मिक्स नेशन क्लिट क्लब से बरामद हुई। ये इस वक्त हमने किस कोफत में और कहां घूम फिर कर गुजारा, इसकी तफसील जानने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल इस दौरान में हमारे दरमियान एक लाहे अमल तरतीब पा चुका था। इस औरत को ट्रैप करने का मंसूबा आइडिया मेरा था और रकेल की तायद मुझे हासिल थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस औरत का ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद से था। ज्यादा इम्कान इस बात का था वो इंडियन है। मैं एक गेम खेलना चाहता था। मंसूबे के मुताबिक मैं स्ट्रीट क्रॉस करके 9th एवेन्यू के कोने पर सड़क के किनारे खड़ा हो जाता। रकेल 10th एवेन्यू पर अपनी गाड़ी के मौजूद रहती। इस औरत को वापसी की राह इख्तियार करने के लिए हमारी शेवी के पास से गुजरकर स्ट्रीट की दूसरी सिमत आना पड़ता। जब वो 9th एवेन्यू पर पहुंची तो मैं हयात के मखसूस इशारे से इससे लिफ्ट हासिल करने की कोशिश करता। अगर वो मुझे लिफ्ट देने पर तैयार हो जाती तो वो फाबिहा, वरना इसके आगे निकल जाने की सूरत में हम शेवी के इस ताकुब करते और कोई मौजू सी जगह देकर इसे घेर लेते। इस काम के लिए ईस्ट विलेज का इलाका ज्यादा मुनासिब साबित होता और अगर खुशकिस्मती से वो मुझे लिफ्ट देने पर तैयार हो जाती तो मैं इंडियन के तौर पर अपना तारुफ कराता और किस तरह अपने शीशे में उतारता। इस बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं सोचा था। मुझे उम्मीद थी मैं इससे निमट लूंगा। मैंने एक तवील अरसा इंडिया में गुजारा था, वहाँ के रहन सहन और इलाकों से बखूबी आगाह था। इसे हैंडल करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आती। इस दौरान मैं रकेल एक मखसूस फासला रखते हुए शेवी में पीछे आती। क्लब के मारे से निकलकर जब वो अपनी कैडी की तरफ भरी तो इसकी चाल ने मुझे बता दिया कि वो अच्छी खासी हुई थी। इस कैफियत में इस फन का नतीजा शामिल था जिसका मुजाहरा करने वो यहाँ अपने रहाइश से इतनी दूर आई थी। इसके कदमों में शामिल हल्की डगमगाहट मेरा काम आसान करने के लिए मुफीद साबित होती। मैं इसको नजरअंदाज करके तेज कदमों में इस मुकाम की तरफ बढ़ गया जहाँ मुझे घात लगाकर खड़ा होना था। थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ कैडी में मुझे अपनी जानिब आते हुए दिखाई दी। मैंने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके अंगूठे की डाउनवर्ड हरकत से इससे लिफ्ट मांगी। मैंने 50-50 के चांस पर वो स्टेप लिया था, लेकिन इसने मुझे मायूस ना किया। मेरे 50% अंदाजे को 100% में बदलते हुए इसने कैडी में नजदीक रोक दी। मेरा काम शुरू हो गया। मैंने रुकू के बल झुकते हुए पैसेंजर साइड वाले शीशे से अंदर देखा। इस दौरान में वो शीशा गिरा चुकी थी। सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोझल आवाज में बोली, कहाँ जाओगे? किसी भी सस्ते होटल तक पहुंचा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने ये जुमला हिंदी में अदा किया था और ये मेरी एक चाल थी। इसने चौंक कर सराता मेरी तनकीदी जायजा लिया और होंठ सकोड़ते हुए हिंदी में बोली, इंडिया से आए हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा तीर गोया निशाने पर जा बैठा था। इसने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, गेट इन। मैंने इन होने में एक लम्हा ताखीर ना की। दूसरे ही लम्हे इसने कैडी को आगे बढ़ा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? इसने पूछा। मैंने बताया, डिसूजा। अपनी शक्ल और हुलिये से इंडियन नजर नहीं आते हो। वो बाकायदा हिंदी में बात करने लगी थी, लेकिन तुम्हारी जुबान से भाषा सुनकर यकीन करना पड़ रहा है कोई गैर हिंदुस्तानी इतनी साफ भाषा हिंदी नहीं बोल सकता। मैंने भरपूर अदाकारी जारी रखते हुए कहा, दरअसल मैं एंग्लो इंडियन हूँ। मेरा बाप हिंदुस्तानी है और माँ अंग्रेज थी। मैं हिंदी और इंग्लिश एक जैसे रवानी से बोल और समझ सकता हूँ। इंडिया में तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? वो मेरी जात पर सवाल करते हुए पूछ रही थी। मैंने बताया, पनेक्ट सिटी। ओह, इसने हैरत से भरपूर मखमूर में कहा, जयपुर? मैंने निशाना तोड़ कर तीर छोड़ा। तुम भी तो बड़ी साफ हिंदी बोल रही हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक भी भारत से है? मेरा नहीं, बल्कि मेरे माता पिता इंडियन थे। वो बरसों पहले अमेरिका आ गए थे। इसने खुमार आलूद अंदाज में बताया, मैं अमेरिका बोरन हूँ। इस दुनिया में आंख खोलने से लेकर अब तक अमेरिका ही की फिजा में सांस ले रही हूँ। तुम मुझे 100% अमेरिकन कह सकते हो। यहाँ पर नस्ल, खानदान और खून कोई नहीं देखता। जात बरादरी की कोई अहमियत नहीं। बस अगर आप अमेरिकी हैं तो सबसे बढ़तर हैं। बात खत्म करते करते इसके अंदाज में एक तफाशुर शामिल हो गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि वो इस वक्त पूरी तरह अपने हवास में नहीं थी। इसकी इस कैफियत में सबसे बड़ा हाथ मेनोशी और खुद फरामोशी का था। वो क्रिकेट क्लब में ये सही दोनों सौगातें अपने साथ लेकर आई थी। सच्ची बात तो ये है, इस वक्त इसके पहलू में बैठे हुए मुझे कराहियत का एहसास हो रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद रहना मेरी मजबूरी थी। मेरे शिकार ने दाने पर मुंह मारने के लिए जाल में कदम रख दिया था। अब मुझे निहायती सफाई से जाल को समेटते हुए इसे अपने काबू में करना था। अपना मकसद हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात नाखुशगवार सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। मैं ये जबर बर्दाश्त करता रहा और पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया? रोए, वो मखसूस अमरीकी लहजे में बोली, बेना रोए। दरअसल इसने बताया था कि इसका नाम बेना रोए है। मैंने अपने कोशिश जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी और पहनावे से अंदाजा होता है कि तुम खासी मालदार हो। तुम्हारा ज़रिए आमदनी क्या है? वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली, प्राइवेट बिजनेस। फिर इससे पहले कि कोई और सवाल करता वो मुझसे इस्तफसार कर बैठी, तुम किसी सस्ते होटल में क्यों जाना चाहते हो और तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? तुम आधी रात के बाद वहाँ खड़े क्या कर रहे थे?
बेना रॉय के ये तमाम सवाल मेरी कहानी के इंट्रो की बिना पर थे। वो नशे में जरूर थी, ताहम मैंने महसूस किया वो अपनी जात को मेरे सवालात से बचाने के लिए पूरी तरह हसास थी। बस इसने अपनी जुबान से जो बता दिया। मैंने इसके इस्तफसार के जवाब में कहा, मेरी परेशानी की कहानी बहुत तवील है, सुनोगी तो तुम भी खामखा परेशान हो जाओगी, इसलिए रहने ही दो। मैंने बड़े दिल शिकस्ता अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर अपने भरपूर लहजे में कहा, बस समझ लो मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मेरा पासपोर्ट, दीगर ज़रूरी कागजात, कोई सामान मेरे पास नहीं रहा। बस जेब में $100-150 बचे हैं। अगर किसी सस्ते होटल में रात गुजारने का मौका मिल जाए तो। मैनहट्टन में इतनी रात गए, तुम्हें किसी बजट होटल सस्ते में कोई जगह नहीं मिलेगी, और फिर तुम गैर अमरीकी भी हो और तुम्हारे पास कुछ दस्तावेज यानी ID भी नहीं। वो हमदर्दाना लहजे में फिर बात को पूरे होने से पहले ही बोल पड़ी, तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं क्या करूं? मैंने अपने लहजे में इस शख्स की बेबसी शामिल कर ली जिसका सब कुछ लुट गया हो। तुम क्या करोगी? मैं ही कुछ कर सकती हूँ। वो होंठ से कोड़ते हुए बोली, ऐसा करो, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, ये रात मेरे अपार्टमेंट पर गुजार लो, सुबह की सुबह देखेंगे। इसकी पेशकश ने मेरा काम आसान कर दिया। अगर वो मुझे अपने घर के अंदर ले जाती तो फिर मैं इसे जेर करके साहिल के बारे में कुछ उगलवा सकता था। इसे जेर करना कौन सा मुश्किल था? वो अपने अमाल के हाथों में इस वक्त खुद ही जेर ज़बर हो रही थी। अलबत्ता इस सूरत में राकेल जरूर परेशान हो जाती। मुझे उम्मीद थी वक्ती परेशानी के बाद वो समझ जाती कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, लिहाजा वो स्वॉर्ड पार्क अपार्टमेंट्स के करीब ही मौजूद रहती। किस सोच में गुम हो? बेना राय की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। आहा, मैंने चौंकने की अदाकारी की। कुछ समझ नहीं आ रही। क्या मेरी पेशकश पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, मैंने मुतज़ब्बिब अंदाज में बोला। फिर मैंने तामिल करते हुए कहा, वो दरअसल मैं इस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ, बस रहने दो ये तकल्लुफ़ात। वो बेतकल्लुफ़ से बोली, ये सब कुछ इंडिया ही में अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम एक भले आदमी हो, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं हो सकता। एक लम्हे को रुककर इसने इस्तफसार किया, तुम मेरी जात से अपने लिए कोई खतरा महसूस कर रहे हो? हरगिज़ नहीं, मैंने कत्ती से कहा। बाकी का रास्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू में कट गया। मैंने महसूस किया कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके खुमार में इजाफा हो रहा था। इस दौरान मैंने अपनी कामिल अदाकारी के जोहर दिखाए और किसी अपसेट के बगैर हम ठीक 2 बजे रात से वॉर्ड पार्क अपार्टमेंट्स में पहुंच गए। बेना रॉय लड़खड़ाते कदमों से अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंची थी। मैंने सोचा था घर के अंदर महफूज हो जाने के बाद मैं इसे दो हाथ करूंगा। इस वक्त वह पूरी तरह टुन थी, लिहाजा इसकी जुबान से अपना मकसद उगलवाने में मुझे कोई वक्त पेश न आती और ना ही कोई खास मेहनत करना पड़ती। लेकिन इसने अंदर दाखिल होते ही मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए, बेना टटोल कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर बहके हाथों से वो अपने पर्स में कुछ तलाश करने लगी। मैं यही समझा वो कोई ऐसी चाबी ढूंढ रही है जिससे बैरूनी दरवाजे को डबल लॉक किया जा सके, मगर जब इसका मुतलाशी हाथ पर्स से बरामद हुआ तो मैंने ठटक कर रह गया। इसके हाथ में मुझे एक चमकता हुआ खतरनाक लेडी पिस्टल नजर आया। इसने मुझे टारगेट पर रखते हुए ग्राहट अमेज लहजे में कहा, कौन हो तुम? मैंने बेना राय से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर था और उसके तेवर बताते थे अगर मैं इसने इस सवाल का जवाब देने पर लम्हा भर की ताखीर की तो वो मेरे सीने में जानलेवा छेद कर डाले दी। इन लम्हात में मुझे नॉर्मल से कहीं ज्यादा हवास दिखाई दी। गोया मदहोशी का वो नाटक मुझे ट्रैप करने के लिए था। मैं मदहोश समझ बैठा था जबकि वो मेरे होश उड़ाने का इरादा रखती थी। ये तो वही बात थी कि लो अपने दाम में सबाद आ गया। खेल बिगड़ गया था। बिगड़े हुए खेल को बनाना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब इस कामयाब बिगाड़ के पीछे किसी खूबसूरत औरत का हाथ हो। हालात को अपने हक में फेरने के लिए भी मीम से काम लेना पड़ता है, मुनाफकत, मक्कारी और मक्खनकारी। बेना राय मुझे बादस्तूर निशाने पर रखते हुए एक मरतबा फिर गुराई, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? मैंने कुछ देर पहले शुरू होने वाली अदाकारी में कोई तअत्तुल न आने दिया और हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरा नाम डिसूजा है और मैं पिंक सिटी। बकवास नहीं, मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही ख्वाह लहजे में बोली और मेरी टांगों में थोड़ा फैलाव पैदा करते हुए इसने दूसरे हाथ को भी पिस्टल तक पहुंचा दिया। इसकी आंखों में मुझे सफाकी के सिवा कुछ नजर न आया। इस मौके पर हाजिर दिमागी और अदाकारी ही से काम लिया जा सकता था ताकि हरकत के लिए कोई राह निकाल सके। हमारे दरमियान सिर्फ 4 कदम का फासला था। मैं कोई भी इंतहाई कदम उठाने के पोजीशन में था। बस पिस्टल वाले को ये एहसास दिलाना था कि मैं इसकी किस्म की हरकत का कोई इरादा नहीं रखता। मेरे साथ एक यकीनी धोखा हुआ था और इसके माँ बाद असरात को किसी धोखे ही से काटा जा सकता था। मैंने अचानक अपने चेहरे पर बरहमी के आसार पैदा किए और कहा, अगर तुम मुझे लौटने का ही इरादा रखती थी तो वहीं क्लब के सामने पिस्टल दिखाकर मेरी जेब खाली करवा लेती। इतना लंबा ड्रामा चाहने की क्या जरूरत थी? और मेरे पास ना ही गया।
میں نے بے بسی سے کندھے جھٹکے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی سب کچھ گنوائے بیٹھا ہوں، یہ عزت اور $100-150 بچے ہیں، کیا تم ان پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہو؟ اس نے بڑی زہریلی نظر سے مجھے دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کہا نا، میں تمہاری حقیقت جاننا چاہتی ہوں، شرافت سے بتا دو تم کون ہو اور کس مقصد سے میرے تعاقب میں لگے ہوئے ہو۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو وہ خود تم سے پوچھ لیں گے جو تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والے ہیں۔ پرس میں سے پسٹل نکالنے کے بعد ہندی کو یکسر بھول کر وہ انگریزی میں بات کرنے شروع ہو گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پسٹل کو غیر محسوس حرکت دی اور بولی، کمن۔ میں اس کے انکشاف سے چونک اٹھا تھا، تاہم میں اپنے چہرے کے تاثرات سے اندرونی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس نے اپنے تعاقب اور کسی کے یہاں پہنچنے کا ذکر کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا ہمارا راز بڑی حد تک اس پر کھل گیا تھا اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، میں بھلا تمہارا تعاقب کیوں کروں گا اور یہاں کون آنے والا ہے؟ اداکاری اچھی کر لیتے ہو، وہ استہزاء انداز میں بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض کروں کہ تم شیورلیٹ میں جس لڑکی کے ساتھ میرا تعاقب کر رہے ہو وہ اب تک میرے آدمیوں کے قابو میں آ چکی ہوگی، وہ دور ہی لوگ تم سے ملنے یہاں آ رہے ہیں۔ رکیل اور شیوی کے بارے میں بینا رائے کا انکشاف سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ مجھے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو نہ رہا اور اضطراری لہجے میں میرے منہ سے نکلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ایک فطری رد عمل تھا۔ اس دوران میں بینا رائے مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بڑے نکیلے الفاظ میں بولی، یہ ہو چکا ہے احمق، تم نادانی میں ایک افریت کے جبرے میں قدم رکھ بیٹھے ہو اور میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ اس نے حقارت بھری نظر سے مجھ ڈالی اور کہنے لگی، تمہیں اداکاری کی ABC بھی نہیں آتی؟ مجھے اداکاری کی ABC نہیں آتی، لیکن تمہیں XYZ سکھا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو A سے پہلے اور Z کے بعد کیا آتا ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے انداز نے اسے اور ہوشیار کر دیا، یعنی وہ ڈیڑھ ہوشیار ہو گئی۔ برا فراق دلی سے پوچھ بیٹھی، دھوٹ ڈیویو مین، ڈیڑھ ہوشیار ہمیشہ مار کھاتا ہے اور بڑی بڑی مار کھا کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی بر ترکی کہا، I mean you are right very man stringy don't nonsense، وہ غضبناک لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ بینا رائے کی آنکھوں سے چھوٹنے والی چنگاریں مجھ تک رسائی حاصل کرتی، میں حرکت میں آ گیا اور اس وقت یہ حرکت بڑی ہی بابرکت ثابت ہوئی۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اپنے ہاتھوں سے پینٹ کی جیبوں کو تھپ تھپایا اور چہرے پر اضطراری کیفیت طاری کر لی، پھر بڑبڑانے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ہینڈز اپ، وہ خطرناک انداز میں پسٹل کو لہراتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تو اپنی جیبوں میں چابی تلاش کر رہا تھا جس سے تمہارا سبق شروع ہوتا۔ میں تمہیں A سے پہلے اور Z کے بعد شٹ یور ماؤتھ، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلائے، ٹرن اراؤنڈ۔ میں نے اس کی ٹرن اراؤنڈ والی ہدایت پر بائن عمل کیا۔ میں نے بڑے شریفانہ انداز میں ہاتھوں کو سر سے بلند رکھتے ہوئے گھوم گیا، لیکن اس گھماؤ کی تکمیل سے قبل ہی میرا رائٹ ویل کک اپنا کام دکھا چکی تھی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر بائیں دیوار سے جا ٹکرایا۔ غنیمت تھا ٹریگر پر بینا کی انگلی نہیں دبی، ورنہ فائر کی آواز لوگوں کو اس اپارٹمنٹ کی طرف متوجہ کر دیتی۔ میری ویل کک نے پسٹل چھڑانے کے ساتھ ساتھ اس کے پسٹل بردر ہاتھ کا مزاج بھی پوچھ لیا تھا۔ وہ مضروب ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پستول کی سمت لپکی، مگر اب اس سے کسی کارکردگی کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل جست بھری اور بینا رائے کو عقب سے دبوچ لیا، پھر ایک دوسرے سے گتھم گتھا فرش پر لوٹ پٹ ہو گئے۔ وہ ایسا وقت اور موقع نہیں تھا کہ اٹھا پٹک کا مظاہرہ کیا جاتا۔ اگر آس پڑوس میں سے کسی کی توجہ ہماری جانب مبذول ہو جاتی تو میرے لیے بے انتہا مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ بینا رائے کے خوفناک انکشاف نے پہلے ہی میرے دماغ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ مجھے جو بھی کرنا تھا آنے واحد میں کر گزرنا تھا۔ میں نے بینا کے نسوانی خطوط کا لحاظ اور اس کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلکا رکھا اور آئندہ 1 منٹ کے اندر میں نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ جب وہ بے بسی کی تصویر میں ڈھل گئی تو میں نے ایک بیڈ شیٹ سے لمبی پھٹی پھاڑ کر اس کے ہاتھ کو پاؤں کو جکڑا دیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لاپٹ کھا۔ وہ بیڈ کے اوپر کسی گٹھری کے مانند اچھل کر رہ گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ساحل اس وقت کہاں ہے؟ ساحل؟ اس کی آنکھوں میں سرسیمگی تیز گئی اور وہ جلدی سے بولی، میں کسی ساحل کو نہیں جانتی۔ تم جانتی ہو اور بڑی اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے اس کی پسٹل کو اس کی پیشانی پر ٹکاتے ہوئے کہا، تم میری ساحل کی اٹینڈنٹ بنی ہوئی تھی، لیکن اب ساحل کو وال اسٹریٹ والے ٹھکانے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ کسی دوسرے بیڈ روم اور نئے ماحول میں ہے اور اس بیڈ روم اس ماحول تک تم مجھے پہنچاؤ گی۔ بینا رائے کو بیڈ روم تک پہنچانے کے بعد میں اس کی پسٹل اٹھا لایا تھا اور اس وقت وہ میری اپنے ہی گن کے نشانے پر تھی۔ میری ساحل کے الفاظ نے اس کی وحشت بھری آنکھوں میں اچھا خاصا پھیلاؤ پیدا کر دیا۔ کیا تم وجدان ہو؟
और सीमा लहजे में मुतसफिर हुई। मैंने गमगीन लहजे में कहा, मैं कौन? तुम इस चक्कर में ना पड़ो, वजदान का नाम जुबान पर लाकर तुमने साबित कर दिया है तुम रब्बी मोशे हमन के लिए काम करती हो। अब शराफत से साहिल का ठिकाना बता दो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे वो लगते लगाते जिन्होंने मेरे साथी को काबू किया है और तुम्हारे बकौल वो यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मैं इनसे मुलाकात का हरगिज इरादा नहीं रखता, लिहाजा मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो, वरना। मैंने पिस्टल की नाल को इसकी पेशानी में चबूते हुए दस्तानसा खतरनाक अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो इसकी आंखों में मौजूद वहशत दो चंद हो गई। वो लकनत ज़दा अंदाज में बोली, मैं नहीं जानती वो लड़की इस वक्त कहाँ होगी। इसका मतलब है तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरी बात का यकीन करो। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने दश्त लहजे में कहा, साहिल का पता बताती हो या मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूं। तुम मेरी बात का यकीन करो। वो थूक टिकाते हुए बोली, आज अली सुबह इस लड़की को वॉल स्ट्रीट वाले ठिकाने से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। इतना तो मैं भी जानता हूँ। मैं गुराया, तुम मुझे बता दो साहिल को किस जगह पर पहुंचाया गया है। मुझे नहीं मालूम, आई एम सो सॉरी। वो बेबसी से बोली, इस लड़की को रब्बी के हुक्म पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, वही इसके बारे में जानते हैं। मैंने राय की हालत बताती थी। वो दरोग गोई से काम नहीं ले रही है। ताहम तस्दीक की खातिर मैंने एक चाल चली और सफाकी से कहा, ठीक है, जब तुम साहिल के बारे में कुछ जानती नहीं हो तो फिर तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। तुम्हारे साथी जब यहाँ पहुँचेंगे तो इन्हें लाश मिलेगी तुम्हारी। वो गुरगुराने लगी। फॉर गॉड सेक, इसका जुमला अभी नामुकम्मल ही था कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। ये बीना का मोबाइल था जो इसके पर्स में रखा था। मैं पिस्टल के साथ इसके पर्स को भी बेडरूम में उठा लाया था। बिना बात अधूरी छोड़कर अपने पर्स की तरफ देखने लगी। तुम्हारे साथियों को कॉल होगी, ठहरो मैं सुनता हूँ। ये कहते हुए मैंने पर्स की जानिब हाथ बढ़ाया। वो तशवीशनाक लहजे में बोली, मोबाइल मुझे दो, मैं अटेंड करूंगी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बिना। मैंने पर्स में से मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, यहाँ से मेरा खेल शुरू होता है, तुम चुपचाप खामोशी से देखती रहो। इस दौरान मैं मोबाइल फोन की घंटी एक मरतबा फिर बज चुकी थी। मैंने यस का बटन दबाने के बाद मोबाइल कान से लगा लिया। मैंने हेलो कहने की बजाय खामोश रहना मुनासिब समझा। हेलो राय। दूसरी तरफ से ठहरे हुए अंदाज में बीना को मुखातिब किया गया। हमने इसके साथी पर काबू पा लिया है। इस वक्त वो हमारे कब्जे में है। लटल उटली के इख्तिताम पर हम इसकी शर्ट लेट को घेर लिया था। फिर से अपनी गाड़ी में मुंतकिल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसकी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया है। तुम भी अपने शिकार पर काबू पा लिया होगा। आखिरी जुमला बोलने वाले ने सवारी अंदाज में अदा किया था, लेकिन मैं चुप साधे रहा। मेरी इस खामोशी ने दूसरी तरफ से बोलने वाले को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो उलझन भरे लहजे में बोला, राय तुम खामोश क्यों हो? हेलो राय। इसकी आवाज में हिजान भरने लगा। तुम ठीक तो हो? क्या मोबाइल इस वक्त तुम्हारे ही हाथ में है? जवाब दो राय। हमारे आदमी एस्ट्रोसा स्क्वायर से ईस्ट ब्रॉडवे में दाखिल हो रहे हैं। ठीक 10 मिनट बाद वो तुम्हारे अपार्टमेंट पर होंगे। एनी प्रॉब्लम? अगरचे मैं इस वक्त इस बड़ी प्रॉब्लम में था, लेकिन पूछने वाले ने राय की प्रॉब्लम के बारे में इस्तफसार किया था, लिहाजा मैंने नो का बटन दबाकर कॉल मुनक़िद कर दी। इसके साथी ने मोबाइल को ऑफ करने के बाद जींस की जेब में ठूंस लिया। इस काम से फारिग होकर मैंने बेना राय को अलविदा नजरों से देखा तो वो पूछ बैठी, किसका फोन था? तुम्हारे रिश्तेदार का। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं कराई? वो बरहमी से बोली, बात करके क्या करती? वो 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम इनके गले मिल मिल कर रोना और रो रो कर इन्हें अपना अहवाल सुनाना। फिर मैं इसकी बंदिशों का जायजा लिया और इन्हें इत्मीनान बख्श पाया। मैंने इसके अपार्टमेंट से रुखसत होने से कबल निहायत ही संजीदगी से कहा, देखो राय, मैं नहीं जानता तुमने अपना मुझे नाम सही बताया है या गलत। अलबत्ता तुम राय तो जरूर हो। मोबाइल फोन पर भी तुम्हें राय कहकर ही मुखातिब किया गया था। मैं बिना राय ही हूँ। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। ओके बीना। मैंने इसकी वहशत भरी हसीन आंखों में झांका। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। तुम में से बहुत ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त एक लम्हे की फुर्सत नहीं। फिर मैंने इसके हाथ पांव की बंदिशों की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ ये सलूक करने का अफसोस है, मगर मैं मजबूर हूँ और मुझे मजबूर करने वाले तुम ही हो। गुड नाइट। तुम मेरा पिस्टल और मोबाइल तो दे जाओ, वो मुल्तजाना अंदाज में बोली। मैंने चीज की तरफ पलटकर देखना भी गुवारा न किया। जवाब देना तो दूर की बात थी। अगले ही लम्हे में बिना राय के अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। वो बिना राय थी या ना बिना धोए, मुझे इसके रोने धोने से कोई सरोकार नहीं था। मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा था, इनमें 10 मिनट 10 घंटों से ज्यादा अहम और तवील होते हैं। मैंने बिना के अपार्टमेंट से निकलने के बाद स्वर्ट पार्क अपार्टमेंट्स को छोड़ने में बामुश्किल 3 मिनट लगाए होंगे। यानी रकेल को काबू करने के दावेदार अफराद के स्वर्ट पार्क अपार्टमेंट नंबर 3-4 में कदम रखने से पहले 5 मिनट। इस वक्त मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां इत्मीनान से बैठकर मैं रकेल के माहौल में झांक सकता था।
ایپیسوڈ 17 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 18 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔